हेलो बच्चों, वेलकम टू द विकीर्ति क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स phi इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू ba cos of theta, where b is the magnetic field strength, a area of the surface, and theta be the angle between normal to area and field direction. Special cases, if theta equal to 0 degree, तो phi कितना हो जाएगा b into a, यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। सेकंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, phi इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 0, यानी फ्लक्स आपका 0 होगा, यानी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the given surface. In case of a coil of area A having n turns, तो फ्लक्स कितना होगा, phi equal to NBA cos of theta. Magnetic flux is a scalar quantity. Its value may be positive, negative, and zero. And dimension formula of magnetic flux is m1 l2 t minus 2 a minus 1. याद करने का तरीका, m1 l2 t minus 2 किसके बराबर है, एनर्जी, यानी एनर्जी अपॉन करंट। एनर्जी m1 l2 t minus 2, करंट का मतलब है a, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, तो आप बोलोगे एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द phenomenon of generating EMF by changing the number of magnetic lines of force, that is magnetic flux, associated with the circuit. The EMF so generated known as induced EMF if circuit is closed. The current which flow it is the current will flow in it due to induced EMF is known as induced current के बराबर होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि when a current carrying coil placed in uniform magnetic field, the magnetic flux linked with the coil change, and induced EMF or induced current produced in the coil. Next topic, Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday first law, it states that whenever the magnetic flux linked with the coil change and induced EMF produced in the coil. Faraday's second law, it states that the magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. Mathematically, induced EMF is given by E equal to minus d phi upon dt. Negative signs show that change in flux and induced EMF both are in opposite direction. नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लेंज लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, यानी जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसी का ही अपोज करता है, उसे हम लेंज लॉ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट्स द राइट हैंड in such a way that the first finger, central finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. The first finger gives the direction of magnetic field. The central finger gives the direction of induced EMF or induced current, and thumb gives the direction of motion, जिसे हम मदर मदर चाइल्ड के नाम से जानते हैं। मदर का मतलब है मोशन, मदर का मतलब एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब है चाइल्ड का मतलब है करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट। Applications of Lenz law. When north pole of a bar magnet is moved towards the coil, the current induced in the coil will be in anti-clockwise direction as shown in the figure. यानी जब नॉर्थ पोल को किसी भी कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं
तो वहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होने से कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड away from the coil. The current induced in the coil will be in clockwise direction as shown in the figure. लेंथ लॉ का मेन काम क्या है? अपोज करना। अगर नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जा रहा है तो जाने से रोकेगा, मींस नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा, और नॉर्थ पोल बनने का मतलब है डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं लाइक दिस, तो वो उसको दूर नहीं जाने देगा, तो वहां पर साउथ पोल एक्वायर हो जाएगा, और साउथ पोल से करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, when a current carrying coil is moved towards the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure, जैसे फिगर में दिखा रखा है, जब हम किसी एक कॉइल को दूसरी कॉइल के नजदीक लेके आएंगे तो उसके अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। अगर हम when the current carrying coil is moved away from the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure, आप करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। व्हेन करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर AB इज इंक्रीज्ड, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमसे ये पूछा गया है कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, A टू B, और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और थंब रूल लगाने से करंट आपका कहा जाएगा हमारे पास A टू B, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज, और लेंजला क्या करेगा? उसका अपोज करेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाएगा तो कहां ले जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो डायरेक्शन कैसी होगी? आपकी क्लॉकवाइज होगी। एक, अगर आप उसको रटना भी चाहते हैं तो ध्यान रखें, करंट कहां जा रहा है कंडक्टर में? A टू B, और आपसे पूछा जाए कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो जो करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में है कैसे है वो? क्लॉकवाइज। तो उसके अंदर भी कैसी हो जाएगी? आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर करंट इन द कंडक्टर AB डिक्रीज, इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और कैसी होगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। व्हेन ए करंट कैरिंग rod of length L moved with velocity v perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF across its ends is किसके बराबर होगा? BLV। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब है लेंथ ऑफ रॉड, V वेलोसिटी ऑफ द रॉड। दिस EMF इज नोन एज मोशनल EMF होता है। If the rod makes an angle theta with the direction of field, the induced EMF is BLV sin of theta के बराबर होगा। Next, when a conducting rod of length L is rotating perpendicular to a uniform magnetic field B, then induced EMF between the ends of the rod is, ये आपका equal to B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। जो ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई इंटू न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए कंडक्टिंग सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r is rotating with a uniform angular velocity omega with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF half of B r square omega। r का मतलब रेडियस ऑफ द डिस्क, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंडक्टर। एन इंडक्टर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इन यूजुअल प्रैक्टिस ए कॉइल और सोलेनॉइड इज ट्रीटेड एज इंडक्टर। द सिंबल ऑफ इंडक्टर इज, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। यानी एक कॉइल को
हम क्या कहते हैं, कॉइल या सोलेनोइड को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर करंट का बढ़ना या घटना उसका जो अपोज करता है उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, when a current flowing through a coil and phi with a negative flux linked with the coil, then phi is directly proportional to I। किसी कॉइल में जितना करंट बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट L, phi इक्वल टू Li। L को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। करंट की फॉर्म में लाएंगे तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी एंड डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू के बराबर होगा। नेक्स्ट, ये आपका एक डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड solenoid of length L, area cross section A, having n turns per unit length. When current I flowing through the solenoid, the magnetic field produced inside the coil is for mu naught Ni। n का मतलब number of turns per unit length। Magnetic flux linked with n turn of solenoid phi equal to NBA cos of 0, cos 0 यानी 1, NBA आ गया। y की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम जानते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल। तो हम n की जगह लिख देंगे हम n इंटू एल, b की जगह रख देंगे म्यू नॉट n इंटू आई, और a का मतलब a, म्यू नॉट और सेल्फ इंडक्टेंस इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। म्यू नॉट नेचर ऑफ द मटेरियल, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड के बराबर होगा। When a magnetic material of relative permeability mu r is filled inside the core of solenoid, the self inductance is increased to L equal to mu naught mu r n square L into A के बराबर होगा। Mutual induction, the phenomenon of induced EMF or induced current produced in the coil due to change in magnetic flux linked with the neighboring coil। जब किसी नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा दो कॉइल यूज की जाती है। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से दूसरी कॉइल के अंदर जो उसके नियर बाई है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं phi s इक्वल टू m इंटू आई पी। m का मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। The EMF induced in the stationary coil is given by ES equal to minus M DIP upon DT। M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ M is Henry and dimension formula same as the self inductance M1 L2 T minus 2 और A minus 2 के बराबर होगा। Coefficient of coupling, coefficient of coupling of two coils, each a measured of the coupling between the two coils is given by K equal to M upon L1 L2 का under root, where L1 and L2 are coefficient of self induction of two coils or M be the coefficient of mutual induction of two coils. The coefficient of coupling is maximum when two coils are bound on each other on a soft iron core. Coefficient of coupling is also large when the two coils are placed as
to have a common axis but less than when they are wound on each other. Coefficient of coupling is minimum when two coils are placed such that their axes are perpendicular to each other. अगर दोनों के एक्सिस सेम है, कॉमन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा, और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह हमारे पास एक डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स M equal to mu naught N1 N2 A upon L. Mu naught nature of material, N1 N2 number of turns in primary and secondary coil, A area of solenoid, and length of each solenoid. Combination of inductance, two inductors of self inductance L1 and L2 are kept so far apart that their mutual inductance is zero. These are connected in series, then the equivalent inductance each same as the resistance होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होती है तो R1 प्लस R2, तो आपके पास इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2। टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in series and they have mutual inductance M, then the equivalent inductance of the combination L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के बराबर होगा। इसके अंदर जो प्लस साइन है occurs if winding in the two coils are in the same sense, while minus sign occurs if winding are in opposite sense. Two inductors of self-inductance L1 L2 are connected in parallel, then equivalent inductance each 1 upon L equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, जिसे हम L equal to L1 L2 upon L1 plus L2 भी लिख सकते हैं। If we consider mutual inductance M of the two inductors, then L equal to L1 L2 minus M square अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन ए करंट I flowing through an inductor, the energy stored in it is given by U equal to half of L I square. The energy stored in an inductor in the form of magnetic energy. Next topic, AC generator. A generator induced electric energy from mechanical energy, यानी कि it is a device which convert mechanical energy into electrical energy, just the opposite of what a motor does. मोटर से हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट। An AC generator is based on the phenomenon of electromagnetic induction, which states that whenever the magnetic flux linked with the conductor change and induce EMF produced in the coil. ये इंड्यूस EMF किसके बराबर होगा, E इक्वल टू N ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, जिसे हम E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, और ई नॉट का मतलब होता है N ओमेगा बी ए, जिसको हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो I इक्वल टू कितना होता है, E अपॉन आर। E की वैल्यू कितनी है आपकी, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I हो जाएगा E नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी, यानी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट का मतलब पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चनों से बनाए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट्स से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें 5 मार्क टॉपिक, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में जो पहला क्वेश्चन है
Draw a symmetric diagram of AC generator, explain its working and obtain expression for instantaneous value of EMF in terms of magnetic field B, number of turns N of the coil of area A rotating with angular frequency omega. Rotating with angular frequency omega. Show how an alternating EMF is generated by a loop of wire rotating in magnetic field. एक्चुअली यहाँ पे जो हमें करना है, सिंपल से उसका पहले सिमेट्रिक डायग्राम बना देना है जिसमें उसके सभी पार्ट का नोमेनक्लेचर कर देना है, वर्किंग ऑफ टेन एक्सप्रेशन, उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है जो कि ई नॉट साइन ओमेगा के टर्म टर्म में रहता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में। और यहाँ पर हम लोग ई नॉट को रिलेट करते हैं इसके सभी पैरामीटर से, बी एन ए ओमेगा, ये सारे पैरामीटर से हम इसको लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट its vertical diameter with angular speed 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field this। ये इसी के रिजल्ट से आए हुए फॉर्मूले का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसमें ई नॉट जिस टर्म से रिलेटेड है, एन ए ओमेगा और बी, इसकी वैल्यू पुट करके ये हम सिंपल से यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो इसमें टॉपिक है मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ रहता है, और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से एवरेज का रिलेशन जानते हैं जिसमें हम लोग लगभग पाई से डिवाइड करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं 2/पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया है, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल आपसे पूछा गया है कि द कॉइल ऑफ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड एवरेज पावर लॉस टू जूल हीटिंग। ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही होता है जिसमें हम लोग पहले आई इक्वल्स टू ई नॉट, जो कि हम लोगों ने एसी जनरेटर का ही फॉर्मूला यूज़ करके ई नॉट निकाला था, उसको आर से डिवाइड करके आई निकाल लेते हैं, और जूल हीटिंग इफेक्ट जो कि आई स्क्वायर आर टी रहता है, इसका यूज़ करके हम लोग हीटिंग इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को हमें डिफाइन कर देना है और साथ में सेल्फ इंडक्शन को हमें डिफाइन कर देना है, और इसके एसआई यूनिट जो कि हेनरी के टर्म में आती है हमें वो लिख देनी है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर का को हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के टर्म में इसका ग्राफ बना के दिखा देना। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, जिसमें पहला टर्म तो सेम ही है, दूसरे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, जो कि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन for self-inductance long solenoid of cross-section area and length L having n turns per unit length। आप एरिया को जो चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए। मैं यहाँ पे कैपिटल ए मेंशन कर दे, कैपिटल ए से आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एल के टर्म में रिलेशन आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला निकालना होता है, और इसी फॉर्मूले से 1 मार्क से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिमिलर क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 कॉइलों के ऊपर बात होती है, 2 कोएक्सियल कॉइल हैं, उनके बीच आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है और शो भी करना है जो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे पर है और दूसरे का पहले पर है, ये दोनों सिमिलर होते हैं, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग सोलेनोइड इस, ये जो
क्वेश्चन है 15 टर्न्स लूप वायर दिस सेंटीमीटर करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस टाइम इंटरवल इन दिस। ये सेम क्वेश्चन जो है हमारा, ये एज इट इज क्वेश्चन जो कि सेम इसके फॉर्मूले पर आसानी से हो जाता। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L ऑन टू स्मूथ पैरेलल वायर PM एंड QM। एक्चुअल में ये इस डायग्राम को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर एक रॉड L है जिसकी लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितनी, L है। अगर हम इसको मूव करें तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन हमें एट द एंड इसकी डायरेक्शन बतानी रहती है। और इस डायरेक्शन का यूज़ करते हुए और इस पूरे डायग्राम का यूज़ करते हुए हमें कुछ फोर्स, EMF, करंट निकालना रहता है। उस करंट EMF और फोर्स का निकाल कर हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल आ जाते हैं। आप सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ conducting length, a conductor of length L is rotating about on its end at constant angular speed omega. One of its end at a constant angular speed omega in plane perpendicular to uniform magnetic field. B. Plot graph to show variation of EMF induced across the end of conductor with this. आपको इनको इसका ग्राफ बनाना है। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है जिसमें कोई रॉड है जो कि एक एंड से किसी मेटल के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है। इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाना पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है और फिर इसके मोशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर EMF का फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो कि हाफ और कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करती है और उस पैरामीटर का हम यूज़ करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक, लेंस लॉ। लेंस लॉ वर्ड पहले तो हमें स्टेट करना पड़ेगा कि लेंस लॉ क्या होता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, जिसमें हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं, वो इसको अट्रैक्ट करने जब पास लेके जाते हैं तो रिपेल करता है जिससे वो इंड्यूस करंट बनाता है और दूर लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है तो भी एक इंड्यूस ईएमएफ बनाता है। अब नया क्वेश्चन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर बी नाम दिया है, यहाँ से ही पूछा जाता है बताइए वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये हम बहुत सिंपल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो कॉइल है अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, आपके पास अगर मैग्नेट है जो कि नॉर्थ इधर साउथ, आप इसको मूव करवाते हैं तो उसको रिपेल करता है और बल्कि आप इसकी तरफ अगर साउथ है और अगर आप इसको दूर लेके जाते हैं तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए फिर नॉर्थ ओर बनाता है ताकि ये इसको रोक सके। इसी प्रोसेस के दौरान ये करंट इंड्यूस करता है और वही हमें इसकी डायरेक्शन बताता है। अगर आप चाहें तो लेंजिस लॉ भी कर सकते हैं। लेंजिस लॉ कभी कभार 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है कि आप उसकी स्टेटमेंट लिख दें। लेकिन हाँ, मेन क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एक यहाँ से हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, चाहे आपका एक लेंजिस लॉ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है जो कि डायरेक्शन के ऊपर पूछ लिया जाता है। सेकंड, यहाँ पर जो भी हमारा ये AC जनरेटर का एक क्वेश्चन नंबर बी है, इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। साथ में सेल्फ इंडक्टेंस का भी SI यूनिट पूछ लेता है या फिर यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट या इसकी EMF का फॉर्मूला पूछ लेता है और पूछ लेता है वो किन-किन पैरामीटरों पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके इस यूनिट से इस टॉपिक पे सारे आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude continuously change with time and direction reverse periodically। क्या होता है ये? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या होता है? आई नॉट का मतलब क्या है? पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें ओमेगा जो दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं हम लोग
2 पाई अपॉन टी, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या 2 पाई इंटू न्यू के बराबर होता है। और टी क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड ऑफ एसी, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। हमेशा इस बात को दिमाग में फीड करके रखेंगे कि अगर हम मीन और एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की कंप्लीट साइकिल के लिए, तो हमेशा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? हमेशा जीरो के बराबर होंगी। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर एनी हाफ साइकिल। इसके लिए आप लोग कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। नंबर एक बात, जब मीन और एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा चार्ज सेंड करेगा सर्किट के अंदर, और हमेशा जो मीन और एवरेज वैल्यू निकलेगी वो कब निकलेगी? वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट in time t of half cycle t by 2 is sent by AC through the same circuit in the same time। तो आपके पास जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, और 2 अपॉन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0.637 ऑफ आई नॉट के बराबर होगी। और अगर हम ये वोल्टेज के लिए निकालते हैं तो वोल्टेज के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 अपॉन पाई इंटू वी नॉट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? वी नॉट। ध्यान रखना इस बात को। और ये हो जाएगा आपका 0.637 ऑफ आई नॉट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ध्यान रखना, 0.637 ऑफ वी नॉट के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको मीन और एवरेज वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन पाई ऑफ आई नॉट, और अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो 2 अपॉन पाई इंटू वी नॉट के बराबर होगी। और अगर कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो या हम करंट की बात करें, वोल्टेज की बात करें, दोनों में वैल्यू कितनी होगी? जीरो के बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the alternating current when passing through the same resistance for the same time। The RMS value of AC is also known as, मैंने ये बताया आपको, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC कहते हैं। और इसको हम आई आरएमएस, आई इफेक्टिव और आई वर्चुअल के नाम से जानते हैं। और ये कितनी होती है आपकी? अगर बात करते हैं आई आरएमएस, तो आई नॉट बाई रूट टू, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 ऑफ आई नॉट। यहां पर एक बात को हमेशा याद रखें, जब आरएमएस वैल्यू की बात की जाएगी तो उसमें एक बात को हमेशा याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और कंप्लीट साइकिल के लिए बात होगी। हमने क्या बोला? मीन और एवरेज के लिए अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड होगा और हाफ साइकिल की बात होगी। अगर बात कर रहा हूं रूट मीन स्क्वायर के लिए, तो कंप्लीट साइकिल की बात होगी और कंप्लीट साइकिल की बात होगी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप लोग। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी क्या होगी? वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, मीन्स 0.707 ऑफ वी नॉट के बराबर होगा। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस सर्किट। अगला आएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर इंडक्टर, और तीसरा होगा प्योर कैपेसिटर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें इंडक्टर और कैपेसिटर आपके 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले क्या होगा? इसमें हमें वोल्टेज लेके चलनी है और वोल्टेज से हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है।
इक्वेशन करंट की निकालने के बाद उसको वोल्टेज के साथ में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसका फेजर डायग्राम बनाना है। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेसिस्टेंस ओनली, लेट V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, उसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। और V नॉट का मतलब है पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और I कितना है, करंट फ्लो अक्रॉस द रेसिस्टर ओनली। तो करंट कितना आएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। और V नॉट अपॉन R को क्या बोलते हैं हम लोग, I नॉट साइन ओमेगा टी। हम लेके क्या चले, वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना निकल के आ गया हमारा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया जाएगा तो हमें क्या पता लगेगा, फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस द करंट और वोल्टेज आर इन द सेम फेज, दैट इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अगर हमसे जब बोला जाए कि इसका फेसर डायग्राम बना के दिखाओ, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका फेसर डायग्राम है, जिसमें आपका जो एक्स एक्सिस है वहां पे आपका टाइम होगा, और आपका जो वाई एक्सिस है वहां पर वी और आई होगा। सबसे पहले हम जब बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, वोल्टेज। ये वोल्टेज का आपका बन गया हमारे पास इक्वेशन, वो बन गया हमारे पास, ग्राफ बन गया। उसके बाद हम किसका ग्राफ बनाएंगे, करंट का। तो नोट कर रहे हो, जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुई है वहीं से आपका करंट स्टार्ट हुआ है, जहां वोल्टेज का एंड है वहीं करंट का एंड है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि आपके पास इस टॉपिक के अंदर कभी भी ये पूछा जाए कि हमें एक बात बताइए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बना के दिखाओ, तो हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स के बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टेंस पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वोल्टेज कितनी है V, और करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, हमारे पास लेट V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट की इक्वेशन आएगी वो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, पाई बाई 2 के बराबर। यानी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर जिसमें I नॉट कितना होगा, V नॉट अपॉन L ओमेगा। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं किसी भी जनरल इक्वेशन के साथ में, यानी I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R, तो आपके पास ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है वो आपका L ओमेगा के बराबर होगा। और जो इक्वेशन दो आई है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों इक्वेशनों को आपस में मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो आप बता सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट lags behind the voltage by an angle pi by 2, that is the phase difference between current and voltage is pi by 2। यानी करंट आप कहां से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, और वोल्टेज आपकी उससे आगे से आ रही है। हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि इसका फेसर डायग्राम बनाओ, तो फेसर डायग्राम के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप वोल्टेज को दिखाएंगे, वोल्टेज आपने दिखा दी। उसके बाद क्या कह रहा है, करंट लैग बिहाइंड है, कितना लैग बिहाइंड है, पाई बाई 2। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा करंट का, नीचे से। ये आपका फेसर डायग्राम हो गया। इसमें आपसे एक बात पूछी जाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पेपर में एक वर्ड आएगा डिफाइन रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस भी दो तरह का होगा, एक इंडक्टर के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटर के अंदर जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। जब बात हो रही है रिएक्टेंस सेम एज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस अपोज करना, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ फ्लूइड टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर ओनली। और ये किसके बराबर होता है, एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल के बराबर होगी। और अगर कभी भी आप लोगों से ग्राफ के लिए बोला जाए, किसके बारे में,
वही फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स और एक्सएल के बीच में। तो हमेशा दिमाग में बिठा लेना, ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स घटेगी तो आपका एक्सएल घटेगा। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली। इसमें हम क्या लेंगे? एक कैपेसिटर लेंगे, एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, करंट कितना फ्लो करेगा? आई फ्लो करेगा। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी होगी? V इक्वल टू वी नॉट आई साइन ओमेगा टी। और करंट कितना बनेगा हमारे पास? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया जाए तो बोथ द इक्वेशन शो दैट करंट लीड्स द वोल्टेज। करंट ज्यादा है किससे? वोल्टेज से। कितना? बाय एन एंगल पाई बाई टू। दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई टू। अगर आपसे बोला जाए कि इसका फेसर डायग्राम बना के दिखाइए तो फेसर डायग्राम में वोल्टेज वही रहेगी, लेकिन करंट कहां से स्टार्ट होगा? लीड है। रिएक्टेंस क्या होता है? द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ हर्ड टू फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द कैपेसिटर ओनली। और एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई न्यू। तो 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी के बराबर होगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके पास टोटल हमने 3 टॉपिक किए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस दी रेसिस्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के अंदर, चाहे वो एचबीएससी हो या सीबीएसई हो, सभी में 5 मार्क्स में आता है। टॉपिक का नाम है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू एलसीआर सर्किट। जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर both are connected in series with AC source like this। और I क्या है? the RMS वैल्यू ऑफ करंट के बराबर है। तो हम वोल्टेज कितना लेके चलेंगे हम इसमें? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या लेंगे हम इसमें? जनरल लेंगे। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। और आई नॉट कितना है? वी नॉट बाय जेड। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां से आई नॉट कितना बनेगा? वी नॉट अपॉन जेड। और जेड क्या बोलते हैं हम? इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? जेड इक्वल टू आर स्क्र प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र का अंडर रूट, जिसको हम लिख सकते हैं आर स्क्र प्लस एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा माइनस एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्र का अंडर रूट के बराबर होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल फाई। तो उस समय आपके पास जो फेस एंगल कितना आएगा? tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर के बराबर होगा। व्हेन एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी tan phi इज पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात को। therefore phi is positive, hence current lags behind the voltage by an angle phi। the AC circuit is inductive dominated circuit। ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सिंपल ध्यान रखें। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, इसका मतलब हमारा जो सर्किट होगा वो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। और जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो हमारा जो सर्किट होगा वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, एक्सएल जब एक्सी के बराबर होगा तो हमारा जो सर्किट होगा वो कैसा होगा? प्योर रेसिस्टिव सर्किट होगा। इस बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई is such that the inductive reactance or capacitive reactance becomes equal, and it means XL equal to XC. The impedance of the series LCR circuit is equal to the resistance in the circuit as such that the current in the circuit is maximum। ध्यान रखना इस वर्ड को, करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। अगर कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो कितनी होती है? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आपसे ग्राफ के लिए बोला जाए कि करंट के बीच में और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना के दिखाए तो ग्राफ हमेशा इस तरह से दिखाई देगा। ये वो स्टेज है जो आपको दिखाई दे रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ये वो स्टेज है जहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम के बराबर होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज द 2 pi times the ratio of energy stored in the circuit to the energy dissipated per cycle। कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है और कितनी एनर्जी आपकी डेसिपेट हो रही है, उसे आप लोग क्या कहते हो? क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Q इक्वल टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। ओमेगा आर का मतलब क्या होता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल का मतलब है इंडक्टर और आर का मतलब है रेसिस्टर। अगर इसको हम एक नए फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट एल अपॉन सी के बराबर होगा। क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। इसको हम बैंडविड्थ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर इन एन एसी सर्किट। इन एन एसी सर्किट वी मे डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ पावर्स। 3 तरह की पावर होंगी। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस पावर। द पावर इन एन एसी सर्किट at any instant of time is known as instantaneous power, equal to the product of values of alternating voltage and alternating current at that time। नेक्स्ट आपके पास है एवरेज पावर। द एवरेज पावर ओवर वन फुल complete cycle of AC is known as average power। It is also known as true power और average power। फॉर्मूला क्या होगा? P average equal to VRMS IRMS cos of phi। VRMS का मतलब होता है V नॉट बाई रूट टू, IRMS का मतलब है I नॉट बाई रूट टू और cos phi। और VRMS IRMS को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल पावर, P एवरेज को बोलते हैं ट्रू पावर और cos phi को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर के बराबर बोलते हैं हम लोग। तीसरी और थर्ड पावर जो है हमारे पास एप्रिएंट पावर, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पावर। द प्रोडक्ट ऑफ virtual voltage and virtual current in the circuit is known as virtual power और apparent power। मैंने अभी आपको बताया था वर्चुअल पावर किसके बराबर होगी? VRMS IRMS किसके बराबर है? V नॉट I नॉट बाई 2 के बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को मैंने बताया था अभी cos phi के बराबर होगा। क्या कहोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर। या दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। एक बात हमेशा दिमाग में फीड करके रखें कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 0 और 1 के बीच में रहेगी। किसके बीच में रहेगी? 0 और 1। अगर बात करेंगे हम प्योर रेसिस्टिव के लिए तो इसकी वैल्यू होगी आपकी हमेशा 1 के बराबर होगी। और बात करेंगे अगर प्योर इंडक्टिव तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलआर सर्किट के लिए तो वैल्यू क्या होगी? Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट और cos phi की वैल्यू होगी R अपॉन Z। बात करेंगे अगर आरसी सर्किट के लिए, आरसी का मतलब होता है कैपेसिटिव रेसिस्टिव सर्किट, तो Z की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी cos phi इक्वल टू R और Z की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इसके नीचे रख देंगे। अगर बात करेंगे एलसीआर के लिए फॉर्मूला तो हम जानते ही है cos phi किसके बराबर है? R अपॉन Z और Z किसके बराबर है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि रेजोनेंस की बात करें तो एक्सएल इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक्ससी के। तो Z किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो इस केस में हमेशा phi की वैल्यू कितनी होगी? 0 और cos phi की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये हमेशा याद रखेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक वाटलेस करंट। The average power associates over a complete cycle with a pure inductor or pure capacitor is 0 even through a current is flowing through that। This current is known as वाटलेस करंट और इसको कहते हैं हम आइडियल करंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। इट इज अ डिवाइस
which convert low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current. It means transformer is a device which increase or decrease alternating voltage. It work on the principle of mutual induction. ध्यान रखना ये इसका प्रिंसिपल है। कहीं कोई पूछे आप लोगों से कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर हमेशा दो तरह के होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो लो अल्टरनेटिव वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज को लो अल्टरनेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसकी कंस्ट्रक्शन बताइए, तो उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स wound over the laminated iron core. The first coil, known as primary coil, connected with AC source, and second coil connected with load resistance through which output is obtained. अगर बात करेंगे हम वर्किंग की, तो वर्किंग में हम क्या करते हैं कि जब आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। और इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा प्राइमरी के लिए, तो ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी। अगर बात करें सेकेंडरी के लिए तो कितनी आएगा आपके पास, ई एस इजिकल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वी एस बटे वीपी इक्वल टू एन एस बटे एनपी। अगर हम बात करते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की, और आइडियल में क्या होता है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इसका मतलब वी एस आई एस इक्वल टू वीपी आईपी के बराबर होगा, यानी वी एस बटे वीपी इक्वल टू आईपी बटे आई एस, और बराबर किसके हो गया, पहले से जानते हैं हम, एन एस बटे एनपी के बराबर होगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होगा हमेशा, और आपके पास वोल्टेज बढ़ेगी। बात करेंगे स्टेप डाउन के लिए, तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है हमारे पास, ज्यादा होती है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है, कम होती है, और आपकी जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है वो हमेशा डिक्रीज होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कभी अगर आपसे पूछा जाए अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नो पावर लॉस टेक्स प्लेस, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर के केस में नहीं होता, कुछ ना कुछ पावर हमेशा एनर्जी की फॉर्म में लॉस होती है, जिसे हम लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये लॉस हमारे कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लक्स लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, इनके नामों से हम इसको जानते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक ब्रेन मैप भी बना के दिखाएंगे, यानी कि एक छोटे से मैप की सहायता से पूरे के पूरे चैप्टर को किस तरह से रीड आउट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट, वो आप जानते हो, एंड इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude continuously change with times and direction reverse periodically। जिसमें हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं, आपके पास मैंने तीन बताए, अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेसिस्टर ओनली, सेकंड मैंने बोला इंडक्टर ओनली, और थर्ड बोला मैंने कैपेसिटर ओनली। मैंने बोला रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के अंदर वोल्टेज को लेके चलेंगे, करंट की इक्वेशंस निकालेंगे। रजिस्टर के अंदर जो इक्वेशन बनेगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट और वोल्टेज आर द सेम फेज। बात करेंगे इंडक्टर के लिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मीन्स करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई टू। बात करेंगे कैपेसिटर के लिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई टू। फिर हम इन तीनों का फेसर डायग्राम बनाएंगे, और फेसर डायग्राम कंप्लीट करने के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे जब चलेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, मेरे पास तीनों को कंबाइन करेंगे, एलसीआर बन जाएगा। एलसीआर बनेगा तो हम इंपीडेंस निकालेंगे, और इंपीडेंस जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर के बराबर होगा।
और अगर XL XC से बड़ा है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, और XC XL से बड़ा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और XL XC के बराबर है तो उसे आप प्योर रेसिस्टिव सर्किट बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पावर के लिए। पावर क्या होगा? P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos ऑफ फाई। P एवरेज को क्या बोलते हैं? ट्रू पावर। VRMS और IRMS को क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर। और cos फाई को क्या कहते हैं हम लोग? पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर। वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। और वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस मैंने आपको बताया XL इक्वल टू XC के बराबर होगा। वो कंडीशन कब होगी? जब करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम होगा, और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी उसे आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलोगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलोगे और उसकी वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर होगी। उसी के आगे हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होगी Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C के बराबर होगी। हमने पूरा मैप को डिस्कस करने की कोशिश की। एक टॉपिक हमारा रह गया, वो भी इस मैप के अंदर है, जिसका नाम है आपका ट्रांसफार्मर। बताया था मैंने आपको। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करेंगे हम लोग? जो मेरी मेन इक्वेशन है वो बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो किसके बराबर होती है? ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP इक्वल टू IP बटे में IS के बराबर होती है। और उसको बराबर किसके रखते हैं? K के बराबर। और K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या इसको कहते हैं हम लोग टर्न्स रेशियो। इसमें हम एफिशिएंसी भी दिखाते हैं। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। और आउटपुट पावर कितनी होती है? ES IS अपॉन EP IP। स्टेप अप की बात करेंगे। स्टेप अप के अंदर हमेशा ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होती है, प्राइमरी में कम होती है। मींस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगी, इनपुट वोल्टेज कम होगी। बात करेंगे स्टेप डाउन के लिए तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। हमारे घरों में ज्यादातर स्टेप डाउन लगे होते हैं जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम है एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। अगर हम बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की, जो कभी कोई होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो तो कैसा हो? जिसके अंदर कोई भी पावर का लॉस ना हो, जितना हम इनपुट दें उतना आउटपुट हमको मिले। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे चैप्टर का रिवीजन किया, पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप भी आपको समझाने की कोशिश की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी इस चैप्टर से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से। पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। इसमें क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क्स, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? पहले तो हमें बता देना है कि ट्रांसफार्मर के जो वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन है, हमें उसको बताना है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को बताते हुए कि प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल को बताते हुए हमें रिलेशन ड्राइव करना है जो कि करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच रिलेट करती है। और ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, व्हाट इज स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? ये जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये कभी इसके साथ लिंक करके भी आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर की जगह लिखा जाएगा स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बाकी एज इट इज क्वेश्चन रहेगा। तो आई क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी लॉस हैपन इन ट्रांसफार्मर? हमें बताना है कि एनर्जी लॉस जो होता है किस किस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर में। और स्टेप डाउन और स्टेप अप की ट्रांस हमें कंडीशन भी बतानी है जो कि हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ टर्न्स कब जब ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तब क्या कहेंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करता है कि आप किस पे बात कर रहे हो। अगर सेकेंडरी पे बात कर रहे हो, सेकेंडरी कॉल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी तो स्टेप अप, और सेकेंडरी में अगर डाउन है एज कम्पेयर टू प्राइमरी देन इट्स कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफर। अब इसी का मैंने एक इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट करने वाला न्यूमेरिकल मैंने लिखा है। हर अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है जिस तरीके से द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है,
एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो, पावर का रेशियो बता रखा है। इनपुट वोल्टेज भी आपको दे रखा है और इनपुट पावर भी आपको दे रखा है। फिर पूछा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एलसीआर सर्किट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसके, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंपेडेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन एलसीआर सर्किट बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले इंपेडेंस पूछा, जो कि Z हम लोग निकालते हैं। फिर पूछा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का रिलेशन फाई, जो कि हमारा रहता है tan इनवर्स के टर्म में, जिसमें हम XL माइनस XC अपॉन R करते हैं यूजिंग फेजर डायग्राम। अब इसका एक्सप्रेशन हमें फेजर डायग्राम जो हम फाई के साथ रिलेट करके बनाते हैं उससे पूछ रहा है। फिर सेकंड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट पूछा जा रहा है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंपेडेंस ऑफ द करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। बस ये जो क्वेश्चन है केवल इतना पूछा जा रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी बता दो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दो, जो कि हम 1/2π√LC निकालते हैं। और ये इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट मैक्सिमम रहता है। और फिर ये हमसे फ्रीक्वेंसी और करंट या फिर इंपेडेंस के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है, तो हमें वो ड्रॉ करना है। अब देखें एलसीआर से जिस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट करता है, ये रहा। पहला तो ये डायरेक्ट है, आर एल सी आपको दे दिया है, सीधा हमारे पास जेड का फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये सी है। एक्सएल कैसे निकालते हैं, एक्सएल निकालने का फॉर्मूला रहता है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, और एक्सी निकालने का XC इक्वल्स टू 1/ωc। वहां से हम XL XC निकाल के सिंपल सा फॉर्मूला में रख देंगे। फिर आपसे पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, इंपेडेंस जो कि मैंने अभी बताया। करंट कैसे निकालेंगे, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि इसका Z है, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। सेकंड, अगला क्वेश्चन, इन सीरीज सीआर सर्किट, देखिए यहाँ L नहीं है तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, C दे रखा है, और मैंने अभी कैलकुलेट करना आपको बता दिया, C दे रखा तो XC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमें ये भी बता रखी, कैलकुलेट इंपेडेंस Z। बस यहाँ पर हमें L नहीं दे रखा तो हम XL की वैल्यू 0 लेके चलेंगे। फेस एंगल फाई, tan इनवर्स, XC नहीं दे रखा तो XL अपॉन R। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, हमें वोल्टेज पूछा है अक्रॉस, हमें टोटल रेजिस्टेंस हम Z से निकाल देंगे, टोटल वोल्टेज हमें पता है, करंट का फॉर्मूला V/R जो कि E0/R है, हम यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR, आपको R पता है, R और I हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको और इसके रेजिस्टेंस को डिवाइड करके वो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब पूछा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस for a series LCR circuit and how it's related with the quality factor. क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1, जिसकी वैल्यू आती है 1/R√L/C। इसका हमें रिलेशन बताना है शार्पनेस से, शार्पनेस जो कि बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से आता है, डेल ओमेगा बाय ओमेगा। इस तरह के रिलेशन से हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालते हैं, उसको रिलेट करना है हमें क्यू वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से है, राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। और ये देखिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने सारे 3-4 क्वेश्चन को मिलाकर एक साथ बनाए हैं, इनमें से एक पार्ट को पूछा जाता है। पावर फैक्टर पूछा हुआ है अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, एलसीआर सर्किट और रेजिस्टर सर्किट, जो कि हम जानते हैं रेजिस्टर केस में मैक्सिमम रहता है 1 और इंडक्टर के केस में आपका 0। इसी तरीके से कैपेसिटर एलसीआर सर्किट का रहता है, जो कि हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इंपेडेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है। इंपेडेंस जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस हमें दिखता है ड्यूरिंग एसी सप्लाई, और ऐसे हम नॉर्मली जानते हैं। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का हमारे पास कर्व है, फ्रीक्वेंसी और जो हम लोग फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं कुछ इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी और एक्सएल जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और वही कैपेसिटर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये कभी कभी 1 नंबर में हमें देखने को मिल जाते हैं।
इनमें से अधिकतर किसी न किसी क्वेश्चन को 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर है ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ये हमने डिस्कस कर लिया। राइट द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वोल्टेज, करंट एंड एवरेज, जो कि अभी हम लोग जानते हैं वी नॉट अंडर रूट टू। इस तरह के रिलेशन में हमारे पास एवरेज और करंट की दोनों की वैल्यू है। एवरेज और आरएमएस की उन दोनों फॉर्मूले को याद रखना होता है। क्यों? इनसे कभी कभी 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा आपको वी नॉट दे देगा, वी पूछ लेगा, वी आरएमएस पूछ लेगा या आई आरएमएस पूछ लेगा। अब है हमारे पास फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट या वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस रहता है और किस सर्किट में करंट लीड करता है और किस सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। इस तरीके से हमारे फाइनल होता है। यही इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।